Good evening, salam, namaste to everyone. Welcome once again to our beloved Dada's BFR Zoom learning session. And yes, of course, without wasting much time, because it would have been much better अगर starting हमारी सोनल मैम करती, but she will join us in some time. Meanwhile, we can start with crab apple. दादा की तरह तो स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक उनका अपना ही अलग अंदाज था स्टार्ट करने का. हर उस पे शायरी या कोई ना कोई हिंदी में एक जोक मारते थे वो. बट यस ऑफ कोर्स, एज पर माय नॉलेज व्हाट ही हैज टॉट मी word to word, crab apple according to him was a cleaning remedy. Him kya, everyone knows that it's a cleaning remedy, and the best remedy for sensation. And when I say sensation, by the end of the entire Zoom, आपको खुद को समझ में आ जाएगा why I said the best remedy for sensation. Let's start with the plant itself. जैसा कि दादा को बहुत पसंद था, जो भी रेमेडी थी उसके प्लांट के बारे में वो जितना पता कर सकते थे, he would just research about the plant itself, about the leaves, the trunk, the fruits, and everything about the plant. कि how nature itself has brought these plants, the water, because इसके अंदर एक हमारे पास रेमेडी है रॉक वाटर भी, कि how nature itself helps us to come out of our own negative mental health, right? So the crab apple, its scientific name, as we all know, is Smilus sylvestris. And the beauty of the plant is that जो crab apple होता है, it is basically bitter in taste. But now that wild crab apple, it is dead, as they think that it lasts only for 100 years. So what I am talking about, the crab apple. This crab apple, it becomes little sweet and soft in freezing temperature. Now connect this beautiful phrase that the crab apple becomes soft and sweet in the freezing temperature to its essence. When our mind is frigid, crab apple basically कैसा होता है कि OCD, a frigid mind, right? या एक temperament ऐसा जिसके अंदर we are continuously embarrassing ourselves, और contaminated mind होता है, चलता रहता है, silly thoughts keep on coming. So उस फ्रिजिडिटी को, उस कंटेमिनेशन ऑफ माइंड को, उस एम्बैरेसमेंट इन आवरसेल्फ, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको करने के लिए हमारे पास क्रैब एप्पल का एसेंस है. सो द क्रैब एप्पल इटसेल्फ बिकम्स सॉफ्ट एंड स्वीट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर. यू कैन रिलेट इट टू आवर फ्रिजिड माइंड, टू आवर एम्बैरेसिंग माइंड, और टू वॉट एवर सिली थॉट्स, या हम ब्लोन अप कर देते हैं अपने थॉट्स को कई बार. And especially we will understand this in negative crab apple child also in some time. So we all know that they grow in hedge grows and in woodland clearings. That's one thing, that crab apple का जो wood होता है, it is a very sturdy wood. It helps in carving and it helps in making furnitures. That's why ये मैंने पहले इसलिए बताया, because we know that it grows heavily in woodland clearings. But now, when we go a step further, we know that the crab apple, when they are prone to pests and diseases, so they need natural sunlight. They need natural sunlight and natural soil. Soil heavy चाहिए उन लोगों को, in a sense कि fertile soil and natural sunlight to remove that pest and disease from themselves. अब ये है कि इनको हम वो जो बोलते हैं ना फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, कर रहे हैं, बिकॉज दे वर बेसिकली वाइल्ड क्रैब एप्पल प्लांट होता था. सो अगर उनके अंदर डिजीज लग गई है, या दे आर प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीजेस वेरी इजीली एज इट हैज बीन बिलीव्ड, तो वहां पे वाइल्ड में आप कहाँ फर्टिलाइजर्स देने जाएंगे. सो दे हैड दैट इन देमसेल्व्स कि वो प्रॉपर सनलाइट, और अगर जो फर्टाइल सॉइल है तो उसके अंदर वो लोग अपने आप ठीक हो जाते थे. सो इन द सेम मैनर दादा हमेशा बोलते थे कि योर मेंटल हेल्थ इज इन योर हैंड्स. सो इफ वी गो बाय नेचुरल थेरेपी, इफ वी गो बाय नेचुरल एसेंसेस, so we are able to remove that pest, that disease from our mind. So this is again a correlation between crab apple and our mind, and how crab apple helps, the sweetness of crab apple, it becomes very sweet and soft in freezing temperature. ये चीजें अगर आप याद रखेंगे about a plant, so it is very easy
to remember the beauty of that very essence कि वो आपको किस जगह help करेगा, right? Now, since the crab apple, it is very high in pectin, so this fruit is used in jelly making, and there are many other uses like उनके अंदर malic and tartaric acid is found in apple fruits. So they ये जो मैलिक और टार्ट्रिक एसिड होता है इट नॉट ओनली हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट द एप्पल बट इट ऑल्सो हेल्प्स द एप्पल ऑल्सो हेल्प्स अदर फूड्स टू गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी वाई जो ये जूस रिलीज करता है फ्रूट सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस दैट एसिडिटी इन द स्टमक दैट्स व्हाई यू विल वंडर कि जब ड्रिंक्स के साथ लोग बाग बैठते हैं सो दे जनरली विद द फैटी फूड और द ड्रिंक्स दे जनरली have this apple slices either with the cheese or with any other fatty foods or even with the drinks because it helps to break down that acid in the stomach, right? So this is again a very good example of crab apple. Now another thing is that the crab apple जो wild crab apple होता था it was said to be little bitter in taste. So it was used in making cigars and even dry cigars. I'm not talking about only cigar जो apple cigar बोलते हैं अपन. So it was used in making because of its that bitter taste. Since it is less, so it was traditionally used to make those cigars. And why? Because it was believed that it helped in rheumatism and gout. तो अगर मैं ये बोलूं कि अब आप क्रैब एप्पल लेना चालू करोगे किसी को rheumatism में नो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल इफ यू हैव दिस एप्पल सिडार अगर ये विनेगर वाला वाइट वाला या येलो वाला जो भी अगर एप्पल से डालें it has lot of benefits in digestion again when I said because of the malic and tartaric acid right so कई बार बोलते हैं ना कि एप्पल सिडार इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन द रीजन इज दैट कि इसके अंदर मैलिक और टार्टरिक एसिड होता है राइट सो दिस इज मोर अबाउट द प्लांट कभी कभी मेनी टाइम्स वी गेट कि ये फिजिकल इसके लिए हेल्प कर सकता है तो वो हमें समझना पड़ेगा एसेंस इटसेल्फ हेल्प कब करेगा एसेंस तो सिर्फ और सिर्फ माइंड में हेल्प करेगा आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए फ्रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए उसकी ट्रंक के बारे में मालूम होना चाहिए उसकी रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए हमारे एंसेस्टर्स दे वर वेरी साइंटिफिक बेस्ड उनके पास बहुत सारी साइंटिफिक चीजें थी बस फर्क इतना था कि वो हमें समझ में नहीं आता है वो हमें कोई समझाने वाला नहीं था एंड देयर द ब्यूटी लाइड इन दादा कि वो ये छोटी छोटी बातें हमको समझाते थे मतलब एक पूरा पूरा सेशन होता था प्लांट पे और हम लोग इनन्यूमरस क्वेश्चंस भी पूछते थे बट ऑफ कोर्स इट वाज रिजर्व फॉर द एंड क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो फ्लो टूटे बोले पहले समझो पहले सुनना सीखो सो दैट वाज अनदर ब्यूटी कि सुनना सीखना पड़ेगा हमको not taking a detour of course but this was the beauty of the plant अब इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्रैब एप्पल है या एप्पल्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बता ही दिया कि फर्नीचर और कार्विंग के लिए यूज होता है Now, another wonderful thing about is that ये क्रैब एप्पल चिल्ड्रन में टीनेजर्स में एसेंस बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और वो फ्रीक्वेंटली क्यों यूज होता है लेट मी स्टार्ट विद स्मॉल एग्जांपल दैट एग्जैक्टली व्हाट दादा गेव कि when a child is not ready to speak in the class not ready to you know read a chapter उसके पीछे रीजन समझना पड़ेगा कि why so sometimes children say, कि, I have a lot of dandruff in my hair. It keeps falling on my, shoulders. या कुछ बच्चे बोलेंगे, I have, ये बोलते हैं ना, उबड़ खाबड़ मेरे teeth हैं. Some kids will say, my lips are very thick. So they are very particular about their physical appearances. Most of the time, children of that age, they don't like to get up in the class and speak. They don't like to read a chapter. Reason बहुत trivial होता है. Reason बहुत silly होता है. बट दैट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द किड्स हमारे लिए वो बहुत सिली हो सकता है बट बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको नकारा नहीं जा सकता वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई किड्स आर फीलिंग लाइक दैट गुड इवनिंग सोनल मैम मैंने स्टार्ट कर दिया था सो वंस आई फिनिश इट फास्ट यू कैन जस्ट टेक ओवर विथ योर एग्जांपल्स राइट
और समटाइम्स किड्स ये भी बोलते हैं कि माय क्लास पार्टनर, जस्ट माय बेंच पार्टनर वाज सिक एंड ही वाज कफिंग सो मच बट ही वाज नॉट यूजिंग द मास्क। तो बच्चों को कई बार डर लगता है, व्हाट इफ ही कफ्स इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माय फेस। उनको वो भी लगता है कि यस, ये मेरे अंदर कीटाणु मेरे अंदर भी आ सकते हैं। सो especially the teenagers, they have a tendency of being very hypersensitive. They have a tendency to highlight all those problems that are very silly. They will blow out of proportion. वो सारी की सारी problems कई बार इनके माइंड में इतनी blown हो जाती है that this उनका पर्सपेक्टिव फॉर द पॉजिटिव थिंग की तरफ से हट ही जाता है। दे आर ऑलवेज इनटू दिस थिंग कि एक्सट्रीमली वरिंग अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर शॉर्ट हाइट, या अबाउट देयर ड्राई हेयर, या अबाउट देयर डार्क स्किन। एंड बिकॉज ऑफ दीज सिली सिली मैटर्स, sometimes they lose that perspective regarding what is very positive for them, what is very important for them at this age या at that time, जब भी उनके साथ ये चीज हो रही होती है। या फिर द स्क्रैबेबल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर किड्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, दोज किड्स दे आर वेरी नीट एंड क्लीन एंड दे डोंट लाइक टू प्ले इन मड, you know, that is kind of an OCD building in the kids. This generally is heredity in a sense. They watch their moms or they watch their family members, और ये inborn भी होती है, not necessarily always like that. नाउ द पॉजिटिव एफर्मेशन इसका क्या होगा, जब इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग के अंदर, या इतनी ज्यादा पर्सनल अपनी बॉडी के लिए इतना ज्यादा बच्चों के दिमाग के अंदर चल रहा है। सो व्हाट हैपेंस सडनली, यू नो, दे स्टार्ट फीलिंग contaminated, या दे स्टार्ट फीलिंग embarrassed, या sometimes they are so repulsed also that they start lying about what, overeating। sometimes ओवर ईटिंग करेंगे बट दे विल लाई कि नहीं, मैं ऐसा मैंने ज्यादा नहीं खाया। मेनी टाइम्स यू विल सी पीपल सेइंग अबाउट दिस। ओवर ईटिंग के लिए रिपल जस्ट सिली लाई दे विल मेक कि मैंने ओवर ईटिंग नहीं की है, और दिस इज नॉट डैंड्रफ, दिस इज जस्ट दैट समथिंग वेंट इनटू माय हेड। व्हाई? बिकॉज these little infections or in their body, it makes them embarrassed in front of their friends, in front of their relatives। तो वो लोग छोटा छोटा सा झूठ भी बोलने लगते हैं। एंड दिस इज नोन एज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये जब चीज होती है, then that kind of, you know, negativity comes in their mind, and they don't like their body, they don't like you know, little things that is happening with them। और वो उनकी वहां से झूठ बोलने की भी आदत पड़ने लगती है। एंड समटाइम्स ऑन द अदर साइड यू विल वंडर कि जो पेशेंट्स ओसीडी होते, दे आर वेरी प्राउड ऑफ शोइंग दैट द हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन। Now, that kind is also known as a persistent anxiety disorder. Now, that generally happens from our generation. हमारी जनरेशन में 50% लेडीज होम मेकर्स हुआ करती थी, एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो being into a job at one point, when I was raising my kids, I was a homemaker. I turned myself into a homemaker because I wanted to be around my kids. बट उसके साथ साथ मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। तो वो एम्प्टीनेस, जब बच्चे स्कूल चले जाते, जब हस्बैंड जॉब पे चले जाते, वो एम्प्टीनेस कवर करने के लिए हम घर में है ना, ट्रैवल छोटे छोटे काम ढूंढने लगते हैं। ये चीज जगह पे रखना, ये चीज, बट वी नेवर अंडरस्टैंड। ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल से ऊपर चला जाता है कि वो करते 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 वी गेट इनटू दैट ओसीडी हैबिट। क्योंकि वो हमारा खालीपन दूर करने के लिए हम घर की साफ सफाई करते हैं। घर की साफ सफाई सबको पसंद है, बट व्हेन इट क्रॉसेस दैट लिमिट, कि वो ये लिमिट क्रॉस करने के बाद कैसा होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए, 2-3 दिन आपको गेस्ट बहुत अच्छे लगेंगे, बट आफ्टर अ वाइल यू विल स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। यू विल नॉट लाइक हैविंग गेस्ट इन योर हाउस। रीजन बीइंग, बिकॉज आपको वो ओसीडी है क्लीनिंग की। और घर में मेहमान रहेंगे, घर में 2 से 5 जने रहेंगे, तो थोड़ा घर ऊपर नीचे होता है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट द हाउस इज डर्टी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट चीजें ऊपर नीचे होने लगती हैं। वो चीजें ऊपर होने लगती हैं तो हम लोग फिजिकली एंड मेंटली वी बिकम एग्जॉस्टेड। दैट इज ओसीडी, अ परसिस्टेंट एंजाइटी आपके दिमाग में चलती रहती है कि मुझे ये चीज जगह पे रखनी। एवरीबडी इज एंजॉइंग, लेकिन आपका दिमाग 24 घंटे उधर है। सो जनरली दिस अकर्ड इन माई जनरेशन हाउस वाइफ्स।
वो धीरे धीरे ऑफ कोर्स इट इज इन हेरिडिटी आल्सो, एंड इट कैन बी, ओसीडी कैन बी इन बॉर्न आल्सो, ये जरूरी नहीं है, बट दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस। एंड इनफैक्ट सोनल मैम रिमेम्बर्स वेरी वेल कि सोनल मैम को और दादा को बहुत समय निकला मुझे इस चीज से बाहर निकालने में। ये सालों की जो हैबिट मैंने अपने अंदर बना ली थी, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड again I am reminding you that it takes lot of time for any chronic situation to get better, any negative chronic situation to get into positivity, समय लगता है, you need to have that kind of patience, right? Moving further, क्रैब एप्पल एनिमल्स, हम यस ऑफ कोर्स आई वाज देयर कि पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है, तो सिंपल है क्रैब एप्पल का पॉजिटिव एफर्मेशन, उसका गोल ये होता है टू ब्रिंग इन दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस, टू ब्रिंग इन दैट फॉरगिवनेस फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर दैट शेमफुलनेस दैट यू आर फीलिंग, फॉर दैट एम्बेरसमेंट दैट यू आर फीलिंग। उसका गोल सिर्फ एक ही है, टू ब्रिंग दैट काइंडनेस फॉर योर सेल्फ, टू ब्रिंग दैट लव फॉर योर सेल्फ, टू ब्रिंग दैट सेल्फ वर्थ फॉर योर सेल्फ, टू ब्रिंग दैट एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ। That is one big reason that crab apple is a part of rescue remedy. अभी A1, many a times people ask कि A1 कैसे, A1 के अंदर ये जो सारी चीजें हैं उसका रीजन क्या है? So see, when crab apple is there, A1 के अंदर क्रैब एप्पल है, सो क्रैब एप्पल का काम है टू ब्रिंग इन दैट सेल्फ वर्थ। अगर आपको लव एंड काइंडनेस फॉर सेल्फ आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट वो कब आता है? कंटिन्यूस, आप यू आर वरिंग इन योर थॉट्स कि मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा है, फॉर दैट कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट्स दैट इज अकरिंग इन योर माइंड, दैट इज वरिंग योर माइंड, वी हैव वाइट चेस्टनट। अब इसका तीसरा पार्ट कैसा है कि यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, दैट्स वाई A1 के अंदर चेरी प्लम है, राइट? नाउ ये जब आपको कोई चीज से वरी से निकलना है, या कोई एम्बेरसमेंट से निकलना है, या आपके कोई फिजिकल इश्यू से निकलना है, यू आर क्वाइट इम्पेशेंट, सो there sometimes you have to add impatience also. But next is that you want to change your entire situation, you want to come from A to B में जाना है आपको, तो वॉलनट इज है। तो ये जो चार दादा के इसमें A1 है, A1 में है, मेनी मेनी सिचुएशंस में ये काम आती है, राइट? सो दैट वाज क्रैब एप्पल इन रेस्क्यू रेमेडी एंड इन A1। अब दोनों का आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा हाउ टू यूज इट। नाउ क्रैब एप्पल हैज बीन यूज्ड बाय दादा एंड अदर ऑफ आवर दादा's टीम्स डॉक्टर्स वेरी वेल इन पेट्स ऑल्सो। यू कैन स्प्रे क्रैब एप्पल का मिस्ट ओवर द एनिमल्स। अगर उनमें से आपको पेट्स में से ओडर लगता है, बैड ओडर आ रहा है, यू जस्ट स्प्रे क्रैब एप्पल मिस्ट ओवर द एनिमल, फर के ऊपर डाल दीजिए। जनरली ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लीन योर पेट्स, इट इज नॉट दैट कि आप क्लीन नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं क्रैब एप्पल छिड़क दूं और ओडर चली जाएगी, नहीं, आपको क्लेanलीनेस तो रखनी पड़ेगी अपनी खुद की, अपने पेट्स की। बट यस, इमीडिएटली अगर आपको लग रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, यू कैन स्प्रे दैट मिस्ट ओवर द एनिमल फॉर द बैड ओडर, इवन फॉर द इन्फेस्टेशन लाइक लाइस, या उनके अंदर टिक्स आ जाते हैं, या कोई वर्म्स हैं, इवन फॉर द फ्रेश वुंड्स या इन्फेक्शन अगर आपके पेट्स में है, आप क्रैब एप्पल स्प्रे मिस्ट करोगे, so within few days you will see better results. So crab apple is good for that, and even try for the animals who have less confidence, for those pets who have less confidence जिनको आपको competition में ले जाना है, you know, they will not, दे विल नॉट होल्ड देयर हेड हाई। या कई बार आपने देखा होगा, अपने दो पैरों के बीच में उनकी जो टेल होती है वो अंदर चली जाती है, बिकॉज दे आर स्केर्ड, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। और समटाइम्स दे विल हाइड बिहाइंड द सोफा, और दे विल हाइड बिहाइंड देयर ओनर्स, right? Even for those pets who have been abused by their owners or by their ex-owners. So crab apple is very helpful in all these situations. Now, the most important part, which is the very short part this time. So because we have to go to Sonal ma'am as ASAP, right? So the the beauty of crabapple and pine, the beauty of crabapple and rockwater. So I mean to say the similarities and the hairline differences. The similarities between crabapple and pine. Both feel physically and psychologically very dirty sometimes, or ये बोल सकते हैं, they feel very impure. You know, for what? For either for the actions or the belief. Now ये समझना, ये सिमिलैरिटी है। अब आप सोचोगे ये सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है कि बोथ आर फीलिंग फिजिकली डर्टी और साइकोलॉजिकली डर्टी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रैब एप्पल के अंदर
एक्शन से दे फील डर्टी. दे विल फील दैट दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड के अंदर कई बच्चे या कई लोग है ना इनन्यूमरेबल टाइम्स अपने हाथ को धोते थे. दे वुड थिंक कि उनके हाथ डर्टी हो गए. किस हिसाब से डर्टी हुए? बिकॉज ऑफ दैट सिली थॉट गोइंग इन देयर माइंड. दे वर वरीड अबाउट द कोविड. तो कोविड सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट चिल्ड्रन या कई लोग अपने कंटिन्यूस हाथ धोते रहते थे, इतना कि उनकी स्किन निकल जाती थी. सो दैट वॉज एन एक्शन, राइट? और पाइन के अंदर कैसा होता है कि पाइन वी नो, पाइन में क्या होता है, देर इज एन फ्रीक्वेंट अपॉलॉजी. द नेगेटिव पाइन पर्सनैलिटी विल फ्रीक्वेंटली apologize because they are harsh on themselves. And why they are harsh? Because they judge themselves. Like a pine will judge themselves for all those moral lapses. How do I explain moral lapses? Okay, let's go like this. Ki they will blame themselves for little things that are morally there. That is belief. जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, अगर उसमें कोई लैप्स आ जाएगा, सो दे विल ब्लेम देमसेल्स एंड दे विल बी लिटिल देमसेल्स एंड दे विल बी हार्श ऑन देमसेल्स. तो उसके लिए भी क्रैब एप्पल कई बार बहुत जरूरी होती है. लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वो एक्शन के लिए है या आपके बिलीफ सिस्टम के लिए है. तो कई बार पाइन हमें पता है, हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि पाइन अपने आप को ब्लेम कर रहा है इसलिए हम यूज कर रहे हैं. नो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर इज अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड बिलीफ सिस्टम. तो कई बार जहां पाइन की जरूरत होती है हम कई बार क्रैब एप्पल दे देते हैं. सो जस्ट इतना सा अगर हम ध्यान रखेंगे कि दिस इज अ हैमर टू द बिलीफ सिस्टम और द लैप्स बिटवीन देयर मॉरल और दे आर जजिंग देमसेल्व्स. ये वाला क्रैब एप्पल इज नॉट जजिंग, इट इज प्योरली एंड प्योरली एक्शन, right? Now there is another example between crab apple and rock water. So rock water और crab apple का again क्या है? They both are very compulsively focused on their physical body. Now physical body हमें ऐसे तो समझ में आ रहा है कि ये तो crab apple है because they are compulsively focused on the physical body. तो ये crab apple है. Why rock water? सो रॉक वाटर का मेन ये बोलते हैं ना, जैसे कई बार मैम भी बोलती हैं, कई बार मैं भी बोलती हूँ कि भाई उसके सिर्फ वर्ड्स पे मत जाइए, राइट? तो रॉक वाटर का क्या है? सेल्फ अटैचमेंट, सेल्फ डिनायल. दे आर वेरी रिजिड इन माइंड. रिजिडिटी इनके भी है, क्रैब एप्पल के भी रिजिडिटी है. रिजिडिटी इन दैट कि नहीं मेरा शरीर खराब है, मेरी शॉर्ट हाइट है, बट दैट रिजिडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रॉक वाटर रिजिडिटी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ओवर हियर. इनकी क्रैब एप्पल की रिजिडिटी कैसी होती है? दे आर इजीली डिस्गस्टेड विद द स्वेट, विद देयर ओडर, और उसको हटाने के लिए दे विल टेक शावर और एएसएपी दे विल टेक शावर और दे विल कंटिन्यूसली टेक शावर. ये रिजिड माइंड है उनका. और रॉक वाटर की रिजिडिटी कैसी है? They will try to master their physical drive. By how? By their self discipline. So much so that they will disturb their own growth. अगर आपका माइंड रिजिड है कि मुझे है ना स्वेट आ रहा है, ओडर आ रहा है, नहीं भी है तो भी आ रहा है, तो आप नहा धो के उसको हटाने की कोशिश करोगे. यहाँ पे क्या है, इसकी जो फिजिकल ड्राइव है, किसकी फिजिकल ड्राइव? रॉक वाटर की जो फिजिकल ड्राइव है, वो दे विल कवर इट अप विद देयर सेल्फ डिसिप्लिन. इतना ज्यादा कि उनका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, उनकी ग्रोथ ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि देयर माइंड इज रिजिड. एट द सेम टाइम दे आर इन अ सेल्फ डिनायल मोड कि और कोई तरीके से ये नहीं हो सकता. उनका ये सेल्फ डिसिप्लिन, यही राह है मेरी. तो कई बार क्या ऐसा होता है कि वो रास्ते चलते चलते, वो रिजिड रास्ते पे चलते चलते, दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, वंस योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड इज गॉन, योर माइंड इज रिजिड, you are not in a position to be very creative. You're not in a position to grow for the self. So this is a hairline difference between crab apple and rock water. And I guess this is exactly from my side. We should immediately pin Dr. Sonal. Welcome, Dr. Sonal. थैंक यू सो मच मैम. डॉक्टर रितु, बहुत टाइम के बाद आपसे मिली, बहुत टाइम के बाद मेंबर्स से भी मुलाकात हुई. तो आज हम दादा की वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन क्रैब एप्पल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दादा ने क्रैब एप्पल को अपने A1 फॉर्मूला में उन्हें जगह दी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है. देखिए, क्रैब एप्पल के जो कुछ भी की पॉइंट्स है, मैडम ने सब कुछ कवर कर लिया है. मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि हाउ क्रैब एप्पल पर्सनालिटी डेवलप्स. ठीक है, तो उससे पहले देखिए, क्रैब एप्पल का पूरा जो थीम है ना, वो ऑब्सेशन, कंपल्जन, उसके अराउंड ही, वो ऑब्सेशन कंपल्जन किसी चीज के लिए भी हो,
वो क्लीनलीनेस के लिए हो, सेल्फ लोडिंग के लिए हो, इंट्रूसिव थॉट्स के लिए हो, या कुछ भी। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कभी सुना ही होगा, अगर आप कॉमन पर्सन है, आप फिजिशियन है, आप थेरेपिस्ट है, कहीं भी। तो ओसीडी क्या है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब कि ऐसी चीज कि जिसके बारे में, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो चीज आपको परेशान करती है, इट्स ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ऑब्सेसिव थॉट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे विचार जो बार बार एक लूप की तरह आपके दिमाग में आते हैं, जिसको आप चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ऐसे थॉट्स आपको परेशान करते हैं, एंशियस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ ऑब्सेशन। तो वो थॉट्स भी हो सकते हैं, आइडियाज भी हो सकते हैं, किसी तरह की डिजायर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो थॉट्स नहीं, ये तीनों चीजें होती है। फिर अ कंपल्शन। जब तक वो थॉट्स आपके दिमाग में, आइडियाज आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, जब तक आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे। तो वो परेशानी से निजात पाने के लिए वो आप एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ डर्टी है, यू जस्ट फील डर्टी। डर्टी नहीं है, जैसे अभी ये क्लीन है, लेकिन जो उसको ओसीडी होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ में मड है, एकदम से डस्ट आ गई है। तो इट्स अ थॉट, इट्स ऑब्सेसिव। मुझे पता है इट्स क्लीन, पर ये थॉट्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये परेशानी और एंजाइटी मेरे अंदर बढ़ती जाती है। तो वो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो कंपल्सिव बिहेवियर में कौन सा करती हूँ, जाती हूँ हाथ धो के आगे जाती हूँ। इसलिए नहीं कि हाथ में डर्ट है, लेकिन मेरी मेंटल पीस के लिए मैं वो कंपल्सिव बिहेवियर करती हूँ, और वो हैबिट बन जाती है। तो एक तो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन से लड़ने के लिए एक कंपल्सिव बिहेवियर है, और ये जब चीजें रिपीटेटिव मोड में आती है तो एक तरह का डिसऑर्डर बनता है। तो इट्स अ ऑब्सेसिव, इट्स अ कंपल्शन डिसऑर्डर। ओसीडी में बहुत से टाइप होते हैं। देखिए, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि बस हाथ धोना क्लीनलीनेस, इट्स ओसीडी। नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ ओसीडी। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो आप क्लीनलीनेस बोलते हैं, इट्स अ कंटामिनेशन ओसीडी। मतलब कि उसमें इंसान को ऐसा लगता है कि वो डर्टी है, उसके आसपास धूल है, किसी चीज को कोई ऑर्डर नहीं है, या यहाँ पे गंदगी है, ही जस्ट सीज। मतलब एक तरह का इल्यूजन है, ऐसा है नहीं, इट्स अ कॉन्टामिनेट। या तो यहाँ पे हाथ लग गया, मेरे अंदर जर्म्स लग गए, यहाँ पे हो गया, मैं कॉन्टामिनेट हो गया, यहाँ पे हाथ लग गया, मुझे डिसीज। इट्स अ कॉन्टामिनेशन ओसीडी। दूसरी तरफ की ओसीडी है स्क्रिप्चुरस ओसीडी, जिसमें दो टाइप है। एक तरह है रिलीजियस ओसीडी, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस तरह के ख्याल आना। रिलीजियस मतलब कि डेथ एंड लाइफ के ख्याल आना, पाप या पुण्य के ख्याल आना, या पिछले कर्मों के ख्याल आना। तो इट्स अ रिलीजियस ओसीडी। दूसरे में है इट्स अ मोरल, जैसे मैडम ने बोला, इट्स अ मोरलिस्टिक ओसीडी। मतलब राइट एंड रॉन्ग, मैंने सही किया या गलत किया, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं वैसी तो नहीं हूं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया। इट्स अ मोरल। ठीक है, तो ऐसे बहुत ऐसे हॉर्डिनेस ओसीडी होती है, सेक्सुअल ऑब्सेशन या फिर सेक्सुअल परसिस्टेंस ओसीडी, ऐसी बहुत सारी ओसीडी होती है। लेकिन क्रैब एप्पल ये दो चीजों में कवर करता है, एक तो स्क्रिप्चुरल ओसीडी जिसमें रिलीजियस और मोरल है, और एक है कॉन्टामिनेशन ओसीडी। तो ओसीडी वाई इन क्रैब एप्पल? क्रैब एप्पल इज अ पर्सनालिटी मेडिसिन। ठीक है, हाउ क्रैब एप्पल डेवलप्स। देखिए, डॉक्टर एडवर्ड बाग के जो 7 इमोशनल ग्रुप है, उसमें क्रैब एप्पल किस में आता है? इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ अदर्स। मतलब है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरे लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, उसके ग्रुप में क्रैब एप्पल को रखा है। मान लीजिए, वो ये तो डॉक्टर एडवर्ड ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मतलब मान लीजिए कि क्रैब एप्पल का बच्चा है जो काफी डिपेंडेंट है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, लोग उस पर थोपते हैं अपने आशा, अपने आइडियाज, अपने काम। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा जो एक रॉयल फैमिली में मतलब बोर्न हुआ है, या फिर ऐसी फैमिली जो काफी रिच है, या फिर ऐसी फैमिली जो काफी रिलीजियस है, ऐसी फैमिली जो काफी स्ट्रिक्ट है अपने मॉरल वैल्यूज को लेके। अब जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता कि वाई दे पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, पर उसके ऊपर उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट उसके टीचर्स के अलावा थोपा जाता है कि तुम्हें ऐसा ही बैठना है, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, ये चीज, ये स्पून ऐसे नहीं तो ऐसे ही रखनी चाहिए, ये बटन ऐसे नहीं तो ऑर्डरली ही शर्ट इन करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एटिकेट्स हैं, डिनर एटिकेट्स हैं, कन्वर्सन एटिकेट्स है, ऐसे फैमिलीज में स्ट्रिक्टली बच्चों को सिखाए जाते हैं। बच्चे का
मन हो या ना हो, तो वो बच्चा क्या करता है कि आधे अधूरे मन से वो चीज कर लेता है। अगर वो नहीं करता तो उसको किसी भी तरह का डर दिखाया जाता है। ठीक है, डर से उसको नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, या तो तुम फेल हो जाओगे, इट्स अ फेलियर। बच्चे के अंदर डर, मैडम ने बोला कि फियर काम करता है सबकॉन्शियस लेवल पे, कि बच्चे को ऐसा कि अगर मैंने बटन ठीक से नहीं बंद किए, शर्ट प्रेस अच्छे से नहीं पहनी, तो मेरे फादर या मदर मुझे पनिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही रिलीजियस में होता है। कोई इंसान जब रिलीजियस घर में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा उसके वैल्यूज उस पर थोपी जाते हैं। और बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि भाई आगे जाकर अगर कोई इंसान वहां पे नहीं जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। ठीक है, पर ये बचपन से अगर नहीं गए तो अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, ये फियर है, इसीलिए मनवाई जाती है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट गई और आप गए ना, तो माइंड में हो जाए कि कहीं कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना। तो इट्स ऑब्सेसिव थॉट। ठीक है, कभी होता है कि भाई कोई इंसान लेटा है और आप उसको स्टेप करके चले गए, तो कि नहीं नहीं वापस से स्टेप कर, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, या तो मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी, या तो फिर आप जा रहे हो और आपकी बुक पर पैर पड़ गया, तो आप तुरंत ऐसे कर लेते हो। अगर ऐसे नहीं किया तो आपका दिमाग में खता कि ये मैंने विद्या का अपमान तो नहीं कर दिया, या तो मैंने किसी तरह का पाप तो नहीं कर दिया। तो ये है रिलीजियस ओसीडी। देखिए, ये बिहेवियर कोई गलत नहीं है, लेकिन जब इंसान के दिमाग में ये बार बार चीजें आती है, परेशान करती है, तब ये ओसीडी डेवलप होता है। और इसकी वजह से दीज आर ऑब्सेशन, हमारा ये कंपल्शन बिहेवियर है। जैसे ही विद्या पे या बुक पे हमारा पैर पड़ गया, हम सीधे करके ऐसे कर लेते हैं। तो वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दिस। क्रैब एप्पल इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस। ठीक है, आगे जाके उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस, ऐसी चीजें जो उसको समझ में भी नहीं है, उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया कि अगर नीटली, ऑर्डरली अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसी होगी। बड़ा होता है क्रैब एप्पल, तो वो स्ट्रिक्टनेस चली जाती है, पेरेंट्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता, लेकिन अब वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुका है। ऐसी चीजें उसको बॉदर करती है, उसको एंशियस करती है। अगर उसने शर्ट अच्छे से बटन अप नहीं किया, ऊपर से नीचे रह गया, तो वो कांस्टेंट ऑब्सेशन रहेगा। अगर वो आगे जा रहा है, वहां पे कुछ नीटली ऑर्डरली नहीं रहेगा, तो वो वहीं पे देखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके प्रोग्राम में है। तो दिस इज हाउ ओसीडी डेवलप्स इन क्रैब एप्पल पीपल। क्योंकि फिर वो क्या करते हैं कि वो एंशियसनेस को हटाने के लिए वो ऑब्सेसिव बिहेवियर करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कोविड में क्या हुआ था कि लोग बार बार अपने हाथ धो रहे थे, मास्क को टच किया तो हाथ धो रहे हैं, यहाँ टच किया तो हाथ धो रहे हैं, क्योंकि डर डर दिखाया। ठीक है, कि हाथ में अगर कहीं पे भी कोविड के जर्म्स लग गए, हमें कोविड हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट। तो ये इट्स अ प्रोग्राम। फिर 2 साल के बाद जब कोविड नहीं हुआ, तब भी कुछ कुछ लोगों को डेवलप हो गया कि यहाँ पे टच कर लिया, नाउ अभी जाके उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फियर है, एंग्जाइटी है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो वैसे ही कॉन्टेमिनेशन, वैसे ही रिलीजियस, वैसे ही मोरलिस्टिक, ऐसे ऑब्सेसिव अगर थॉट्स आते हैं, इट्स डायरेक्टली, देखिए, जो ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के अंडर में अगर बच्चा पला है, ठीक है, तो उसको लुक वाइज कि तुम्हें ऐसे ही दिखना है, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तो आगे जा इतना छोटा 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 माइक्रो मैनेजमेंट, कि आगे जाके जैसे मैडम ने बोला, इट्स सेल्फ लोथ। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, भले ही वो शेप में है, फिर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आई डोंट लुक गुड, लो कॉन्फिडेंस। तो क्रैब एप्पल आर रेज्ड चिल्ड्रन, रेज्ड किड्स ओसीडी भी इसलिए। देखिए, अगर ओसीडी के बारे में बात करने जाए तो लेक्चर कम पड़ेगा, बट दिस इज फ्रॉम माय साइड कि क्यों क्रैब एप्पल मोस्टली डेवलप्स ओसीडीज। तो ये इसके पीछे का एक पूरा एक थियोरी है कि हाउ क्रैब एप्पल एक्ट्स लाइक दिस। तो मेरी साइड से यही बस मैडम, दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जब अगर आप आपके, जब आपने ऐसे किया ना, यस, तो एकदम से दादा का वो एग्जाम्पल ध्यान आ गया कि तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है ना, उसके अंदर जेठालाल की ऑब्सेसिव हैबिट है। कोई भी बात होती थी, वो बाबूजी के पैर छू के ऐसे करता था। दैट वाज वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल। मतलब कोई बात में दम भी नहीं होता था ना, तो बाबूजी करे बाबूजी। सो दैट वाज, मुझे एकदम से जब आपने ऐसे किया, सो दादा यूज टू गिव दिस एग्जाम्पल कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में he had this OCD habit. Yes, that was a wonderful session on OCD, which is very important. क्योंकि OCD अभी because of social media, it has taken a rampant, you know, position now.
So yes, of course, किसी को अगर कुछ raise hand, kindly raise your hand if you have something to speak on crab apple. We would like to hear from you also. If क्योंकि anybody हमारे wants, पास बहुत कम टाइम बचा है, yeah. 2-3 मिनट्स And ही है in any समय. case, is there any question? You can still raise your hand and ask your queries. So, ma'am is there. Yes, we do have one. No, thank you, Dr. Ritu. A very good session. Thank you, Dr. Sir. Thank you, Dr. Vashne sir. Any questions from anyone? So kindly just unmute yourself.